بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، جذبہ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارا موضوع ہے خواتین پاکستانی کمیونٹی کی ویلفیئر میں کیسے کردار ادا کر سکتی ہیں. تو آج ہماری مہمان ہیں طاہرہ رباب صاحبہ. طاہرہ رباب صاحبہ جرمنی میں تو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. انہوں نے اپنی پوری زندگی پاکستانی کمیونٹی کی ویلفیئر میں گزاری ہے. سیلف میڈ خاتون ہیں اور بہت اچھی شاعرہ ہیں اور مذہبی اسکالر بھی ہیں. ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں شاہدہ پروین صاحبہ کا. وہ بھی بہت اچھی سماجی ورکر ہیں. اور آج میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں ڈاکٹر تسنیم سعید صاحبہ. سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر تسنیم سعید صاحبہ فرانکفورٹ میں ایک پریکسس چلا رہی ہیں اپنا. بہت اچھی ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹرز کمیونٹی کی کو بھی لیڈ کرتی ہیں. اور اس کے باوجود ڈاکٹر ہونے کے باوجود آپ کو اندازہ ہے کہ ڈاکٹرز لوگ کتنے مصروف ہوتے ہیں. پاکستانی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے وہ وقت بھی نکالتی ہیں. تو میں اب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کو کنٹینیو کریں. اور شاہدہ پروین صاحبہ کا اب انتظار کرتے ہیں، وہ آ جاتی ہیں تو وہ بھی پروگرام کو جوائن کر لیں گی. ڈاکٹر تسنیم صاحبہ. السلام علیکم جی، تھینک یو اعجاز صاحب. السلام علیکم ہماری معزز مہمان طاہرہ رباب صاحبہ. شاہدہ پروین صاحبہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی. آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں اباؤٹ دا رول آف ویمن، یعنی خواتین کا کردار ہماری پاکستانی کمیونٹی کے ویلفیئر میں، جو کہ یہاں جرمنی میں ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے. تو اس سلسلے میں طاہرہ رباب صاحبہ اور شاہدہ پروین صاحبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. یہ عرصہ دراز سے یہاں مقیم ہیں، 40 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے ان کو یہاں پہ. اور انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی بنائی بلکہ اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے دوسروں کی ویلفیئر کے بارے میں بھی نہ صرف سوچا بلکہ اس کے لیے بہت کام بھی کیا. ہمارے لیے یہ دونوں خواتین نہ صرف ہمارے لیے قابل تحسین ہیں بلکہ قابل فخر بھی ہیں اور قابل تقلید بھی. قابل تقلید کیوں کہ ہماری آج کی جنریشن ان سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے یہ سب کام کیسے کیے جب سوشل میڈیا فار ایگزامپل موجود نہیں تھا. آج کے دور میں تو سوشل میڈیا موجود ہے جس سے ہم ہر وقت ہر ایک سے کنیکٹڈ رہ سکتے ہیں. ساری دنیا ہماری فنگر ٹپس پہ ہوتی ہے اور لوگوں سے رابطہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس وقت جب سوشل میڈیا نہیں تھا تو آپ نے یہ سب کیسے مینیج کیا، بلکہ آپ وہاں سے سٹارٹ کیجئے کہ آپ کو یہ انسپریشن پہلے کہاں سے آئی کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کو بغیر سوشل میڈیا کے اس زمانے میں مینیج کیسے کیا. جی طاہرہ رباب صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ تسنیم صاحبہ اور ہمارے محترم اعجاز پیارا صاحب. معذرت چاہتی ہوں کہ آپ نے یہ احساس بخشا کہ اس بہت ہی بہترین موضوع پر ہم لوگ مل بیٹھے اور گفتگو کرنے کی ہمیں آپ نے یہ خوبصورت موقع فراہم فرمایا ہے. تو تسنیم صاحبہ، میں یہ عرض کروں گی کہ پروردگار عالم نے جب یہ کائنات بنائی تو مرد اور عورت دونوں کو بنا کے اور اس سلسلے کو دے دیا کہ جاؤ اور جدوجہد کرو، کام کرو. اور میں تمہارے ساتھ ہوں، رکنے لگو گے تو میں دھکا لگا دوں گا، ورنہ تم اپنے فعل کے مختار ہو، کرتے چلے جاؤ. تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ جو ہم خواتین کا چونکہ موضوع ہے ہمارا کہ پاکستانی کمیونٹی میں خواتین جو ہے وہ کس طرح فلاح و بہبود کا کام کر سکتی ہیں. دیکھیے، یہ تو ہر انسان کی ذات میں اس کی اہلیت توفیق خدا الہی ہوتی ہے اور اپنے اپنے سرکمسٹانسز پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ کس ماحول میں ہیں اور کیسے ہیں. آپ کا سوال کہ مجھے کب سے انسپریشن ہوئی کہ میں یہ کروں. میرا سلسلہ، میرا خیال ہے کہ دنیا سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ رہا ہے، کیونکہ میں پیدائشی طور پر ایک عجیب سی قوت کی عاشق رہی. مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، لیکن میرے دل سے ہر بات اٹھتی تھی جو والدہ سمجھاتی تھی کہ یہ اچھی ہے بات، یہ بری بات. تو میں اچھائی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکی تھی.
जब किसी को देखती थी तो बचपन में ही हर एक की मदद करना, हर एक का साथ देना, कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद कर देना, ये कहीं मेरे खमीर में मौजूद था। तो बाज हो सकता है कि लोग किसी को देख के कहते हो हमें भी अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन मुझे अपनी मंजिल का पता था, अपने रास्ते का, कि मुझे ये करना ही करना। और ये बचपन से ही मेरे अंदर जो थी, इसने आज तक मुझे अपने लिए चैन से नहीं बैठने दिया, बल्कि दिन रात मैं मखलूक खुदा की खिदमत के लिए हाजिर रहती हूँ, और माशाल्लाह एहसान है उसका, तो कि मैं ये कर पाती हूँ। जी, तो ये तो आपकी इंस्पिरेशन थी माशाल्लाह। तो आप ये बताइए आपने मैनेज कैसे किया? शुरू कहाँ से हुआ और फिर आपने मैनेज कैसे किया हाँ यहाँ जी, पे? मैनेज करना, चूंकि मैं 1976 में जर्मनी में मेरा आना हुआ, तो साथ ही मेरा छोटा बेटा, उसकी पैदाइश हो गई 10 माह के बाद वो तशरीफ लाए, तो बच्चे को भी संभालना, और चूंकि हम आए थे अभी, हमें पेपर्स वगैरह सब कुछ, उस जमाने में तो बड़ी आसानियां थी, जॉब ढूंढ लो, तो वो सारे सिलसिले हमें करने थे। तो जॉब भी, बच्चा भी, और घर गृहस्थी भी। उसके बाद कोई भी आ जाता, कुदरत की ये मैं समझूंगी कि मेरे पे बड़ी इनायत रही कि मैंने आते ही 3 महीने में बगैर सीखे सिखाए जर्मन भी बोलना शुरू कर दी। मैंने बहुत जल्दी पिकअप किया। तो अब किसी को कोई जरूरत होती थी तो वो आने, तो मुझे इतनी राहत मिलती थी कि मैं किसी की मदद कर रही हूँ, और मैं जाके उनको जबान बोलनी, दफ्तरों में, वकीलों के पास, या जो फॉरेन अफेयर का दफ्तर होता है, यानी हमारा आउटलैंडर बिहेवियर, तो जाना, तो लोगों ने वो, बल्कि पुलिस वाले हैरान हो के, अभी तो आप खुद इतनी थोड़ी सी वक्त में यहाँ पे हैं, और आप किस तरह इतना अच्छा, कि पाकिस्तान से सीख के आई। मैंने कहा नहीं, मैंने तो जो सीखा यही सीखा है। तो उनकी मदद करनी, बस वो मेरा काम ही था। बाज औकात मेरे मरहूम शौहर कहा करते थे, कभी किसी वक्त सोच समझ के थोड़ा रुक जाया करो, फैमिली है, मियाँ है, आप जो कोई आवाज देता आप भाग पड़ती हैं। मैं कहती थी पता नहीं कोई अगला कितनी मुश्किल में होगा, और उसने जब मुझे आवाज दी तो मेरा यकीन है कि मेरे रब ने मुझे पुकारा, तो मैं चल पड़ी। तो जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये किसी की मदद करने का मौका मिलना भी अल्लाह की तरफ से एक करम है, और ये अल्लाह उसके लिए ख़ास लोगों को ही चुनता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। तो आपने कहा कि आपकी फैमिली, आपका बेटा था आपके साथ, तो मैनेज करना आसान था, हस्बैंड ने सपोर्ट किया आपको? जी, 2 बच्चे, मेरा पहले बेटा जो पाकिस्तान से मैं मेरे साथ आया, दूसरा यहाँ पैदा हुआ, तो 2 जी, बच्चे भी, और मुश्किल तो है था, सारा दिन जॉब पे रहना, बच्चों को अपने किंडरगार्टन, और छोटे को 6 महीने का था गालिबन, तो उसको वो किंडर क्रेपे बोलते हैं जो बच्चों का, वहां जी। छोड़ना बड़ी मुश्किलात। उस वक्त अभी मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था, बसों पे जाना और बच्चों को वहां छोड़ना, फिर वहां से जॉब पे जाना, तो बड़ा बड़ा कठिन वक्त था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तकरीबन 1.5 साल के अंदर अंदर गाड़ी सीखी सबसे पहले। तो बल्कि मुझे जिसने लाइसेंस इशू किया, तो उसने कहा कि आप पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने हमबर्ग में फ्यूराशाइन यानी ड्राइविंग लाइसेंस लिया। तो मुझे अच्छा हुँ, लगता था कि मैं कुछ कर पाती हूँ, कुछ कर लिया। जी, जी। माशाल्लाह से वो तशरीफ ले आई। जी, तो शाहिदा परवीन साहिबा भी आ गई हैं, एजाज़ साहब का भी हम वेट करते हैं। वालेकुम सलाम जी, वेलकम, वेलकम टू द वालेकुम प्रोग्राम। सलाम। एजाज़ आदाब। साहब। तस्लीम। शायद प्रवीण साहब आपको आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल सही आ रही थी, बिल्कुल बेहतरीन। चलो माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब करें उनसे भी क्वेश्चन। जी सर, आप उनका तारुफ़ करवा दीजिए, फिर मैं आगे बात करती हूँ। ये मैंने पहले भी तारफ करवा दिया कि शाहिदा परवीन साहिबा मशहूर जर्मनी में समाजी वर्कर हैं, और पिछले दिनों हमने टैलेंट अवार्ड करवाया, और उनकी समाजी खिदमात के इतराफ़ में हमने उनको टैलेंट अवार्ड से भी नवाजा। और शाहिदा परवीन साहबा की एक खूबी ये है कि वो जो स्पेशल अफराद हैं, मजूर अफराद जिनको हम कहते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी बहाली के लिए पाकिस्तान और जर्मनी में काम कर रही हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अपना शाहिदा एक माहिर तालीम भी है शाहिदा परवीन साहबा, और इंटीग्रेशन पे बहुत अपने शहर ब्रिटेन में जो है ना शाहिदा परवीन साहबा काम कर रही हैं। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही खवातीन, मोअज़्ज़ज़ खवातीन, शाहिदा परवीन साहबा और तारा रबाब साहबा,
वो जर्मनी में पाकिस्तानी खवातीन के लिए एक रोल मॉडल है। जी, बिल्कुल एजाज़ साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही। जैसा कि मैं ताहिरा रुबाब साहिबा के बारे में भी कह रही थी, शाहिदा परवीन साहिबा भी हमारे लिए ना सिर्फ़ काबिल फ़ख्र हैं बल्कि काबिल तकलीफ़ भी हैं कि आजकल की नस्ल इनसे बहुत कुछ सीख सकती है, क्योंकि उन्होंने जर्मनी में उस वक़्त इंटीग्रेशन की और उस वक़्त ये सोशल वर्क का काम शुरू किया आज से कोई 30-40 साल पहले, जबकि सोशल मीडिया का वजूद भी नहीं था और एक-दूसरे से राब्ता करने में इतनी आसानियाँ नहीं थी जैसे कि अब हैं। तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उस वक़्त उनको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली और दूसरा इस काम में उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, शाहिदा साहिबा। मैम जी शाहिदा? जी जी सुन रही हूँ। जी। अ, यहाँ जी तकरीबन 35 साल हो गए यूरोप में, और अल्लाह के फजल से जो भी चाहा, सोचा और इरादा किया, उसमें हर तरफ से मदद आई, इंसानों की तरफ से, रूहानी दुनिया से और सिचुएशन से। तो मैं कहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि रास्ते हमवार हो जाते हैं जब आप बहुत सालों से चाह रहे हों कि आपने कुछ करना है, तो रूहानी दुनिया आपके लिए रास्ते हमवार कर देती है। तो मुझे बहुत शुक्र है कि परदेश में होने के बावजूद यहाँ जर्मन ज़बान सीखने के लिए और मुख्तलिफ गैर लोगों के साथ यहाँ तालीम हासिल करना, उनके लिए काम करना, मुझे ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। और जो मैं सोचती हूँ कि जो मुश्किल आती इसीलिए है कि आप उससे कुछ सीख सकें और आगे बढ़ने का आप में जज्बा ज़्यादा पैदा हो। तो मुझे बहुत शुक्र है कि जितने भी काम पाकिस्तान में शुरू किए, स्कूल शुरू किए और सब कुछ, उन सब में बहुत फ़ायदा रहा, आसानी रही और लोगों ने उसे एन्जॉय किया। जी, बहुत शुक्रिया। एक सवाल मैं आप दोनों ख़वातीन से करना चाहती हूँ ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए कितना ज़रूरी है कि वो जर्मनी आके यहाँ इंटीग्रेट करें? इस मौज़ू पे मैं भी ख़वातीन को एजुकेट करती रहती हूँ कि इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आप हमें ये बताइए कि इंटीग्रेशन से क्या मुराद है और ये क्यों ज़रूरी है और किस तरह करना चाहिए? तो पहले प्लीज़ ताहिरा रुबाब साहिबा आप बताइए। जी। जी। देखिए जब हम यहाँ आए हैं तो हमें एक मुकम्मल जिंदगी तो गुजारनी है, और इस मुकम्मल जिंदगी के लिए हमें अपने आप को यहाँ पे अपने इतराफ पे, अपने माहौल पे, अपने सिलसिलों पे डिपेंड तो करता है, लेकिन हमें यहाँ से देख के कम से कम अपने आप को उस मंजिल पे लाना चाहिए, क्योंकि हमें कहीं भी किसी सिलसिले और मामले में खुदा ने ये नहीं कहा हुआ कि तुम औरत हो, तुम नहीं कर सकती। हमें पूरी की पूरी बराबर की जिम्मेदारी दी गई है कि मैं इन्हीं जालू फिर अर्ज खलीफा, जमीन पे खलीफा बनाना जा रहा हूँ। तो ये नहीं कहा सिर्फ मर्द, बल्कि जी। तखलीक के लिए जो उसने फिगर बनाया है उसको वो भी साथ में शामिल है। ये जी। हमारी थोड़ी सी कमाईगी है कि हम जब भी बात होती है हम समझते हैं कि आदमियों के लिए है, बराबर की औरत उसमें शरीक है कि वो जिंदगी के सिलसिले को आगे बढ़ाए और करे। तो अब जब हम यहाँ आएंगे, वही मैंने कहा ना कि जो अपनी अपने माहौल की या अपनी अहलियत होती है उसके हिसाब से लोग करते हैं या नहीं करते, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपकी तरह इस्तिदा करूंगी अपनी खवातीन से कि वो अपने आप को खुदा के ये हुक्म परवरदिगार है कि और औरत में मर्द से ज्यादा कुव्वत होती है, फिक्र की, जाफिशानी की, रहम की, तरहम, हर चीज औरत में, क्योंकि वो एक माँ होती है, उसके अंदर का जहान ही एक मुख्तलिफ नरमी का, वो ममता लिए जो होता है उससे वो बहुत कुछ कर सकती है। और इसके लिए उसको हर वक्त अपने आप को मैदान में रखना है। और ये हुक्म खुदा है, हम लोग कोई एहसान नहीं कर रहे किसी पे, क्योंकि हमारी जिंदगी का मतलब वो मकसद ये है, तू जा मेरी कायनात में, मुझे जान पहचान, जद्दोजहद कर और बढ़, चांद सितारों पे कमंदे डाल। और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ मर्द, औरत भी, और हमें सबको बेदारी चाहिए। खुसूसन मैं पाकिस्तानी खवातीन से कि ये जो सिलसिले हैं आप इनको छोड़ दिया जाए। अब हम चांद सितारों पे जा रहे हैं, कमंदे डाली जा रही हैं, इसलिए अपने उस माहौल और कल्चर के उस वो जो हसार है उसको तोड़िए, निकलिए, शराफत से आपने कौमों को तामीर करना है और इसको अंजाम पजीर कीजिए, ताकि आप दुनिया में भी और आखिरत में भी हर तरह से अपनी रूह को वो कुव्वत दे जो आपका ज़ादिरा बन जाएगा।
जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल कहा आपने ताहिरा साहिबा। सितारों से आगे जहान और भी हैं, हम बिल्कुल अपनी दुनिया को खुद ही महदूद कर लेते हैं और बिल्कुल इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता, ये हम खवातीन का अपना कसूर होता है। सबसे पहले तो हमें अपनी दुनिया और अपनी सोच का महवर वसी करने की ज़रूरत है ताकि दूसरे भी उससे इंस्पायर हो सकें और फिर हम पे उस तरह की पाबंदियाँ ना लगाएँ जो कि बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। यही सवाल मैं करूँगी शाहिदा परवीन साहिबा से कि इंटीग्रेशन कैसे की और कितनी ज़रूरी है? पहले तो मैं इन सब खवातीन के लिए जिसके लिए आपने सवाल किया था, मैंने एक क्षमा जलाई है उम्मीद की कि वो ये सब क्षमा जो है अपने दिलों में, अपनी सोचों में जला के रखें। और जी ये वही बात जो मोहतरमा रबाब साहबा ने भी कहा, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ मैं ये कहूंगी कि इंटीग्रेशन जो है क्या है कि दो समुंदर आपस में मिलें, दो पानी आपस में मिलें, दो ख्यालात, दो जबानें या मुख्तलिफ तरह के ख्यालात आपस में मिलें और हम एक दूसरे से कुछ सीखें। तो यहाँ जब मैंने यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना शुरू की एज ए टीचर, फिर उसके बाद सोशल वर्क में आई, स्पेशल पर्सन्स के साथ काम किया, स्पेशल बच्चों के साथ काम किया, और 2015 से फिर महाजरीन आ गए मुख्तलिफ दुनिया के लोगों से यहाँ, तो वो तरह तरह की जबानें, तरह तरह के कल्चर यहाँ आया। तो जैसे आपने कहा जो एक खातून है उसमें ये सलाहियत दी है खुदा ने कि वो हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर ले। तो जिस सेंटर में यहाँ इस वक्त बैठी हुई हूँ, अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कैमरे में, ये एक बहुत बड़े आर्ट गैलरी है और ये मैंने यहाँ सेंटर की बुनियाद रखी 2015 में। यहाँ हर मुल्क से, हर मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं, जर्मनी के भी बहुत लोग आते हैं और हम यहाँ हर संडे को मिलते हैं, आपस में काफी चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, पाकिस्तानी अफगानी और दूसरे। तो ये खवातीन जब अपने बच्चों के साथ आती हैं, अपने शौहरों के साथ आती हैं, खुद एक ग्रुप बना के आती हैं, तो हम एक दूसरे के साथ सीखते हैं। फिर जर्मन लोग जो जहाँ आते हैं उनके साथ बातचीत करना, उनकी आपस में दोस्तियां हुई, सबने एक दूसरे को घर में बुलाया, क्रिसमस पे बुलाया, ईद पे बुलाया। हम यहाँ ईद का फंक्शन मनाते हैं, हम यहाँ क्रिसमस मनाते हैं। तो इस तरह से हम जो है दूसरे अख्तार को सीखते हैं और अपने अख्तार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये जो खवातीन हैं ये इस चीज में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। उनकी यकीनन घरेलू जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन हमारी जो मासूम खवातीन है, मैं कहूँगी, वो अक्सर ये नहीं समझ पाती कि जब वो अपने बच्चों को और खुद को लेके बाहर की दुनिया में जाएंगी तो वो कितना कुछ सीखेंगे उनके बच्चे इसके जरिए, लोगों से मुलाकात के जरिए और दूसरे कल्चर से पॉजिटिव चीजें सीखें। आपने बहुत अच्छी बात की। आपके पॉइंट को मैं थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँगी कि हमारी ख़वातीन का मसला ये होता है कि यहाँ आके वो सिर्फ़ पाकिस्तानी कम्युनिटी को ही ढूँढती हैं और वो सिर्फ़ पाकिस्तानी लोगों से ही मिलना चाहती हैं और सिर्फ़ अपनी ज़बान में ही बात करना चाहती हैं। वो ये नहीं सोचती कि हम एक नए मुल्क में अगर आ गए हैं, तो हमें इस मुल्क को भी समझने की ज़रूरत है, यहाँ के कल्चर, यहाँ की ज़बान, यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनके साथ घुलने-मिलने की ज़रूरत है। इससे ना हम में कोई कमी आ जाएँगी, ना वो हमसे बड़े हो जाएँगे, बल्कि दोनों एक लेवल पे आ जाएँगे और वो हमारी और रिस्पेक्ट भी करेंगे। और मैं समझती हूँ कि जो खिदमत खल्क है, जो कि आप दोनों ख़वातीन माशाल्लाह कर रही हैं, ये बियॉन्ड जेंडर यानी मेल, फीमेल या मुसलमान या नॉन मुस्लिम के बियॉन्ड होता है। वो फिर अल्लाह की मखलूक के लिए है, उसमें फिर जेंडर और रिलिजन सामने नहीं आता। जैसा कि मेडिकल में भी नहीं आता कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मैं ये नहीं देखती कि मेरा मरीज़ मर्द है या औरत है या मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है। मैं सबके लिए डॉक्टर हूँ और सबको मैंने ट्रीट करना है। और आई थिंक खिदमत खल्क का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही होता है कि हम इन चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं। ताहिरा साहिबा, आप क्या कहती हैं इस बारे में कि हम ख़वातीन अपने आप को महदूद कर लेती हैं इवन इन सोशल वर्क कि हम सिर्फ़ ख़वातीन की फलाह व बहबूद के लिए ही काम करेंगे, ऐसा क्यों है? बस ये मेरा ख्याल है, हमारे यहाँ जो घरेलू माहौल जिसमें ग्रो अप होती हैं हमारी खवातीन, वो उनपे इतना तारी हुआ होता है कि वो हिम्मत ही नहीं लेती बाहर निकलने के लिए। बेशक आजकल जो ज्यादा एजुकेटेड लड़कियां हैं हमारी आ गई हैं इस मुल्क में, तो वो अपने आप को काफी बाहर लिबरल लेके दुनिया में चलती हैं। हमारे खौफ बहुत है हमारी औरत में, पाकिस्तानी में। वो जब तक खौफ का हाला आप नहीं तोड़ेंगे, देखिए मैं 24 साल की थी जब मैं यहाँ आई थी, तो मैंने गाड़ी सीखी। मैं पूरे यूरोप में इतना मैंने ट्रेवल किया, किसी से डरे बगैर, सब इंसान थे मेरे लिए। मैंने हर इंसान, और मेरे पास चूंकि मैंने
क्रीपो और इंटरपोल में भी काम किया हुआ मिनिस्ट्री में, तो सारे जर्मनों के साथ ऐसे लगता था कि हम एक फैमिली हैं, हम एक बहुत बड़ी फैमिली है। और मेरा ज्यादा इन लोगों से उठता था ना, इस कदर अच्छे लोग, और उनके साथ मिल के हमने जितनी एक्टिविटीज में कर सकती थी, मैंने हर एक की मदद की, हमने किया, और हमने उसको जिसकी भी मदद चाही देखा और हमने उसको साथ में किया। हमारी औरतें डर जाती हैं, नहीं हम आपकी तरह तो नहीं हो सकते। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते, ये तो हमारी हमारी कानून फितरत है, ये कानून फितरत है, और हमारे दीन ने हमें कहा है कि उठो और करो। आप क्यों इस तरह अपने आप को जिम के, तकरीरें भी करती हूँ, उनको समझाती भी हूँ, मेरे पास ग्रुप है वो इबादत के लिए, वो भी आती हूँ, उनको भी रोज एक आध कोई ऐसी स्टोरी सुनाती हूँ और कहती हूँ उठो, हिम्मत करो, वक्त बहुत कम है, अपने आप को अपने उस रोल में फिक्स करो जिसके लिए आप भेजे गए हो। और इसको, ये खौफ हमारे यहाँ, वसाइल हमारे यहाँ, माहौल और सिलसिले, और बाज तो कह देंगे या आप हमारी औरतों को ना खराब कर दें, ये तो हमारा हाल है, समझाएंगे। जब मैं पाकिस्तान गई, मैं आपको यही इसी जुमले से शुरू करती हूँ मोहतरमा अरबाब साहिबा। जब मैं पाकिस्तान, अभी मैं 10 साल रह के आई हूँ कुछ अर्सा पहले, क्योंकि मैं यहाँ से अपनी कश्तियाँ जला के चली गई थी। मैंने यहाँ तालीम हासिल की यही सोचकर कि मैं, जिस तरह इस्लाम में भी है कि इल्म के लिए सफर करना जरूरी है, तो लिहाजा यहाँ मैं आई और जो इल्म हासिल किया मैं उसे पाकिस्तान वापस लेके जाना चाहती थी। और मैं गई और मैं रही और सोचा कि हमेशा के लिए वहीं रहेंगे। तो 10 साल वहां रहे, और जो मैंने खवातीन के साथ काम किया, स्कूल के बच्चों की माओं के साथ काम किया, टीचर्स के साथ काम किया, तो वो मुझे ऐसे लगा ये मेरे वतन की खवातीन हैं, मगर कितना मुख्तलिफ है। और बल्कि मैं कहूँगी मेरी मरहुमा वालदा, जो कि अब जिंदा होती तो शायद 90 साल की होती, वो इतना सोशल वर्क किया करती थी अपने मोहल्ले में, और इतना कुछ जो कि मैंने सीखा उन्हीं से सीखा। वो तमाम खवातीन का ध्यान रखती थी, तमाम स्कूल के बच्चों का ध्यान रखती थी, और वो कभी यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं गई हैं, मगर उन्होंने सब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया, उर्दू सिखाया, गुड़ियां बनानी सिखाई, सोशल वर्क किया, मोहल्ले की सफाई का ख्याल रखा, खवातीन को मेडिसिन का नॉलेज दिया, हिकमत का नॉलेज दिया। यानी कि मैं कह रही हूँ कि आज की जवान औरत जो 30-40 साल की है, ये 50 साल की है, वो क्यों नहीं ये काम कर पाती? वो सिर्फ क्यों अपने चूल्हे के साथ अपने आप को मुंसलिक महसूस करती है? उनके जो मर्द हजरात हैं, उन्होंने मुझे पाकिस्तान में यही कहा कि आप हमारी खवातीन को फिर खराब कर देंगे, मगर सबने नहीं कहा। बहुत से मर्द हजरात ने कहा आप बहुत अच्छा सोच रही हैं, हमारी खवातीन को भी ये बताइए कि वो अपने दिन को डिवाइड कर सकती हैं। आप अकाउंट करें तो आप तकरीबन 9 घंटे अगर आप खाना पकाती हैं, घर में काम करती हैं, तो आपके पास फिर भी 5-6 घंटे बचते हैं बच्चों के साथ हैंडवर्क करने के लिए, बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए, मोहल्ले की खवातीन के साथ सोशल कम्युनिटी के लिए। तो वो झिझक है एक थोड़ा सा, मैं कहूँगी कि वक्त के साथ साथ जो जो हमारी जनरेशन थी, आपकी, मेरी और मेरी वालदा की, वो बहुत आजाद थी और अपने वक्त को बहुत अच्छा मैनेज कर पाती थी। आज की खातून, माजरत के साथ मैं कहूंगी कि थोड़े से ये टेक्निकल लाइफ की वजह से एक डिप्रेशन से में है, जिसे कहते हैं ना, ट्रॉमा में है, ट्रॉमा में है वो, उसकी फीलिंग वो दबी हुई है, और वो अपने आप को इतने आजाद नहीं महसूस कर पाती। जबकि वो टेक्निकली हम कहेंगे भाई यहाँ तो बहुत आजादी है, मगर आप यकीन कीजिए, ये मैं जिस सेंटर में बैठी हूँ, इससे अगली गली में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती है, वो कभी आती नहीं है यहाँ। बहुत मुश्किल से मिन्नतें करूंगी तो वो आएंगी। मैं उनसे कहती हूँ यहाँ आके सब लोगों से मिले, मुख्तलिफ दुनिया के लोग आते हैं, उनसे अपनी बच्चियों को मिलाए, बच्चों को मिलाए, खुद मिले, आपको बेहतर होगा। लेकिन वो घर में बैठी हुई है और कुछ नहीं वो कर पाती। जबकि यहाँ हम पेंटिंग करवाते हैं और तो खवातीन को सिलाई सिखाते हैं, यहाँ हम जर्मन जबान सिखाते हैं, तो ना वो खवातीन जर्मन जबान सीखने आती हैं, ना वो कुछ आर्ट वर्क करने के लिए आती हैं, और दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है, जिसका बच्चों के ऊपर भी काफी असर पड़ता है। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आप दोनों खवातीन से, कि अगर आप कंपेयर करें कि आज की खातून या आज की औरत जो पाकिस्तान में है, या कंपेयर टू द खातून ओवर हियर इन जर्मनी, तो वो क्या पाकिस्तान की औरत ज्यादा प्रोग्रेस कर रही है और यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी की कम प्रोग्रेस कर रही है, या कम आज़ाद ख्याल है, या कम सोशल है? क्या इसमें हमारी यहाँ की पाकिस्तानी कम्युनिटी के माहौल का असर है
کہ وہ اس طرح گھل مل نہیں پاتی یا اس طرح سامنے نہیں آ پاتی؟ طاہرہ رباب صاحب آپ پہلے جواب دیجیے پلیز. جی یہ دیکھیے سب سے بڑی پرابلم جو ہے ہمارے ملک کی اور یہاں کی، ہم لوگوں نے صبح اٹھنا ہے اور گھر کو شروع ہو جانا ہے خود ہی A to Z، ناشتہ بھی بنانا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہے، اگر جاب پہ جا رہے ہو تو پھر تیاری کر کے سب کو اٹھا کے بھاگ کے آپ اتنے وہ ہو جاتے ہو، اپنا سیلف آپ کو کانفیڈینس ہو جاتا ہے اور آپ بالکل اپنے آپ اندر ایک ایکٹیویٹی جو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. پاکستان میں نوکر چائے لا دے، پانی لا دے اور یہ کر دے، خدمت کر دے، اس نے مائی آ جائے گی، وہ برتن بھی دھو لے گی، وہ کپڑے بھی دھو لے گی، وہ صفائی بھی کر جائے گی. تو دیکھیے یہاں سے آ کے ہمارا مینٹل جو لیول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. آپ نے خود سب کچھ کرنا ہے اور وہ جو آپ کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے اس پہ آپ دوسروں کی مدد کرنے بھی آر محسوس نہیں کرتے ہیں. لیکن وہاں چونکہ میں بیگم صاحبہ یا ہم کیوں کریں، یہ تو ان کا کام ہے، تو یہ اندر ان کے ایک ایسے تعمیر ہو جاتی ہے جس سے وہ اس سٹیٹس پہ نہیں آ سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اتنا تیز، کیونکہ مجھے پتا ہے جو میرے سامنے کام میں اسی کو ڈن کر کے پھر آگے بڑھتی ہوں. پہلے وہ تو کر لیں، میں نے کہا نہیں یہ سامنے اگر اس کو کر لوں پھر رہ جائے گا. یعنی آپ مشین کی طرح چلتے ہیں. میں ایک سیکنڈ میری زندگی کا کاؤنٹ ہے اور اس میں میں نے سب کچھ کرنا ہے، لیکن وہ آرام سے بیٹھے. تو یہ جو ایک ڈفرینس ہے نا ہمارے یہاں، یہ بہت بڑا ایک وہ بن جاتا ہے، کیونکہ ان میں وہ ہمت طاقت ہی نہیں ہوتی جو ہم لوگ. ہم تو ایک مشین ہے، ہر وقت آن ہے، اور وہ ان کے پاس دائیں بائیں ہے. آپ جی شاید آپ فرمائیے. شاہدہ صاحبہ سے میرا جی آپ پہلے کہیے پھر میں سوال ہے آپ سے میرا ایک. جی نہیں آپ کہیے سوال اپنا. سوال میرا یہ ہے کہ اب جہاں پہ جو نئی لڑکیاں آتی ہیں فار ایگزامپل، اور ان کے لیے بالکل نیا ماحول ہوتا ہے، دوسرا جرمنی میں ٹھنڈ اتنی ہوتی ہے، سورج بہت کم دکھائی دیتا ہے، تو بہت آسانی سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں. تو کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ ایسے لوگ یا ایسی خواتین اپنے آپ کو مثبت سرگرمیوں میں ملوث کریں، جیسا کہ خدمت خلق، سماجی سرگرمیاں، تاکہ وہ اس ڈپریشن سے نکل سکیں اور ان کو کسی کے کام آنے کا احساس ہو تو ان کو اپنی زندگی اچھی لگنے لگے؟ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ بالکل آپ کی بات یہ صحیح ہے، یہ بہت اچھا نقطہ ہے. میں ابھی دوبارہ 2 مہینے پاکستان میں رہ کے آئی ہوں. تو جو آپ نے گرمی کی بات کی ہے اور ڈپریشن کی، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی موسم کی وجہ سے ڈپریشن ہے، اور جو سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آپ نکلیں گی اور آپ کو روحانی خوشی ملے گی، جس کی وجہ سے آپ اس سے اپنے آپ کو میں اپنے توازن پیدا کر سکتی ہیں. پاکستان میں گرمی ہے، وہاں کے لوگوں کو اتنا ڈپریشن کا معاملہ نہیں ہے، مگر پھر بھی ایک خاص قسم کی اندرونی معذوری کہوں گی میں، جسے جرمن زبان میں یا کہتے ہیں نا گلیمٹ فیولن. ٹھیک ہے، آپ اپنے آپ کو چاہتے ہوئے بھی قدم نہیں اٹھا پاتے. وہ یہاں میں کہوں گی جرمنی میں یا یورپ میں ایک وہ بھی ہے غیر یقینی پن، کہ میں نے اگر کسی جرمن سے یہ بات کی یا جرمن کمیونٹی میں گئی تو وہ کیسے سوچیں. تو اس کے لیے ہمیں کافی بہادری چاہیے ہوگی، ہمت چاہیے ہوگی یہ سٹیپ اٹھانے کے لیے. اور جو جوان بچیاں پاکستان میں نے دیکھی ہیں، ان سے بہت پیار اور معذرت کے ساتھ کہ کچھ ہیں سوشل ورک میں، کیونکہ میرا خود وہاں 7 سکولز ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں، اور لیونگ کمیونٹی ہے اسپیشل پرسنس کی کافی بڑی، روشنی ایسوسی ایشن کے نام سے لاہور میں، جہاں ورک شاپس بھی ہیں. ہم اتنا چاہتے ہیں کہ لوگ وہاں آئیں، پریکٹیکل کریں، ہاسپیٹیشن کریں، انٹرپریشن کریں، سب کچھ، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت کم لوگ ملتے ہیں. جی لڑکیاں نہیں جانی چاہیے باہر، لڑکیاں اتنی دور کیسے جائیں گی، لڑکیاں اکیلے باہر کیسے نکلیں گی. میں ان سے کہتی ہوں کہ اگر وہ اپنے لباس خریدنے اکیلے جا سکتی ہیں، اگر وہ بیوٹی پارلر اکیلے جا سکتی ہیں، تو وہ پھر سوشل ورک کے لیے کہ اسکول میں کیوں نہیں اکیلے آ سکتی؟ سمجھیے وہ کیوں نہیں اس چیز کے لیے گھر سے نکل سکتی؟ تو جو سوچنے کا انداز ہے نا، اصل میں جو سوچ ہے وہ انسان کو طاقت اور ہمت دیتی ہے. سوچ ہی انسان کا راستہ بناتی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں یہ سب سے جاننا ضروری ہے. یہ بیج ہے آپ کی کسی بھی ویل پاور کے لیے، کہ آپ کے اندر کون سا بیج اگا رہی ہیں آپ، کون سا پودا اگے گا جو آپ کو یہ کہے گا کہ اب مجھے اپنے گھر سے نکلنا ہے اور ایک قدم اٹھانا ہے، چاہے وہ جرمنی ہے چاہے وہ پاکستان، سردی ہے یا گرمی ہے. آپ کو اپنے ول پاور جو ہے نا اپنے اندر
اس کی ٹریننگ کرنی ہے, اسے تربیت دینی ہے, اسے اسٹرانگ کرنا ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو کلیئر کرنا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کیا ہے میرا مقصد ہے حیات, میں نے اپنا دن کیسے گزارنا ہے, میں نے اپنے یہ مہینہ کیسے گزارنا ہے, میں نے اپنی زندگی کا اچیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے, کس طرف میں نے جانا ہے, ڈائریکشن کیا ہے میری زندگی. وہ جب تک جوان لوگوں پہ کلیئر نہیں ہوگی, چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے لڑکی ہیں, وہ اس ڈپریشن میں آتے جائیں گے, اس معذوری کی احساس میں جکڑے رہیں گے. یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جوان لوگ جو ہیں اپنی مقصد حیات کو کلیئر کریں. بالکل. ایک شعر ہے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. تو طاہرہ رباب صاحبہ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ خواتین اگر سوشل ورک کرتی ہیں تو وہ میرے خیال میں ایز اے مدر وہ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل اور انسپریشن بھی بن سکتی ہیں. بچے ماں کو زیادہ دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دیئر فادرز, تو یہ ایک انسپریشن ہے جو وہ اپنے بچوں میں بھی جگا سکتی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی جی بالکل, جیسا آپ نے سوال کیا پہلے بھی میں یہی عرض کر رہی تھی کہ ماں ایک تخلیق کے عمل سے اور اس پوری کائنات میں پروردگار عالم کے اس عظیم ورک پہ جس سے وہ تخلیق انسانیت یا مخلوقات کو آگے بڑھانے کی ہوتی ہے اہل, وہ کائنات کو بناتی وہ ہے, بچے کو گھر سے تربیت دیتی ہے. جو بھی باہر نکلے گا وہ اپنی ماں کی تربیت اپنی ماں کی گود سے نکلے گا. تو اس کا تو خدا کے بعد کام ہی ایسا ہے. اور اگر یہ ہمت و طاقت سے اپنے بچوں کو اپنا سلسلہ سکھاتی ہے, بچے اپنے کردار کو اس طرح پیش کرتی ہے, تو بچے خود بخود بہت ساری چیزیں پوری بے شک نہیں, روح نے اپنا ڈفرینٹ اس کا ایک پیتھ ہے اور اس نے ایکسپیرینس کرنا ہے, لیکن یہ جو تربیت آغاز سے ماں کی ہوتی ہے یہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے اس میں, اس کو پتا ہوتا ہے. میرے پاس ایک 23 سال کا بچہ جرمن, بیچارے نے کتنی دفعہ فون کیا کہ مجھے اپنا اسپرچل کچھ سیکھنا ہے, میرے پاس وقت نہیں تھا, تو میں نے اس کو ایک دن دے دیا, کوئی 2 مہینے بیچارہ فون کرتا رہا. تو وہ میں نے اس کو کہا تو کہنے لگا میں آیا, تو کہتا واقعی مجھے دروازے پہ میں نے دیکھا چھوٹا سا 9 عمر سا بچہ, گولڈن بال, بھولا سا چہرہ, 23 سال کا بچہ جرمن. تو کہنے لگا کہ کانپ رہا, کہتا میں تو خوشی سے کانپ رہا ہوں کہ میں آپ کو, مجھے ٹائم مل گیا. اب وہ آیا, اس نے میرے سے اسپرچل سوال, ہم کون ہیں, کہاں سے آئے گے, اس کو میں بتاتی رہی, اس کی آنکھیں برستی رہی, اور وہ میں نے کہتا ہے, اس سے میں نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ اس چیز میں انٹرسٹڈ یا کچھ ہے, تو وہ کہنے لگا کہ میری ماں جو تھی نا وہ تھوڑی کرسٹ خیالات کی تھی, لیکن وہ پھر مجھے چھوڑ گئی, چلی گئی. تو وہ دیکھیں, وہ جو چلی گئی, چھوڑ گئی, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ جو بنیاد اس نے اپنی ماں کی آغاز میں دیکھی تھی نا, اس نے اس کو اسی تگ و دو میں رکھا کہ میں دیکھوں حقیقت کیا ہے. ماں کا تو بالکل رول صحیح. ایسا ہے. بالکل, یہ آپ نے بہت ضروری بات کہی رباب صاحبہ. میں آج بھی فخر سے کہتی ہوں, یہاں جب بھی میرے لیکچرز ہوتے ہیں یا باتیں ہوتی ہیں آج کے جوان لوگوں سے, کہ آج میں جو کچھ ہوں یا جو کر رہی ہوں سوشل ورک یا ایجوکیشن کا کام, وہ اس لیے نہیں میں کر رہی کہ میں نے دنیا کے 3-4 یونیورسٹیز سے تعلیم حاصل کی اور یہ میں نے اسکول یا یونیورسٹی سے سیکھا. کہ میں کہتی ہوں جو میرا سب سے پہلا اسکول اور یونیورسٹی تھی وہ ماں تھی, جن سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا کہ یہ کام کیسے اور کیوں کرنا. بے شک بے شک. اور اگر میں اپنی تمام یونیورسٹیز کے ایجوکیشن کو اور ایکسپیرینس کو نکال دوں اور صرف اپنی والدہ کی جو مثالیں ہیں انہیں میں فالو کرتی ہوں, اسی نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کرتی ہوں, تو وہ وہی ہے جو کہ آج ہم ہیں. جیسے آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ جو ہم اپنے والدین کو دیکھتے ہیں, ماؤں کو دیکھتے ہیں, اپنے بڑے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں, ان سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں, پھر استادوں سے دیکھتے ہیں, نانی نانا اور اپنے ہمساؤں سے دیکھتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بچے کی تربیت کے لیے آپ کو ایک پورا گاؤں چاہیے ہوتا ہے. صرف ایک بچے کو صرف ایک شخص نہیں پالتا, یا صرف اس کے والدین کی ذمہ داری نہیں ہوتی. سب سے بڑی والدین کے بعد تمام ماحولیات سے جو بچہ سیکھتا ہے. تو ہم نے جو اپنے گھر سے سیکھا وہ ہم سب بہن بھائی جو ہے اپنے دوسرے کاموں کے ساتھ ساتھ سب سوشل ورک کیا کرتے ہیں, سب انسانیت کی بھلائی کرنی ہے, حقوق العباد پورے کرنے ہیں. اب میں کچھ سوالات پوچھوں گا ڈاکٹر صاحبہ. میں پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ کوسٹ ہیں, لیکن وہ بھی چونکہ سماجی ورکر ہیں تو ان سے بھی میں سوال پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں. پہلے ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک فرنکفورٹ میں پریکٹس کی چلا رہی ہیں,
आप एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी फ्रैंकफर्ट में चला रही हैं। डॉक्टर्स के पास बहुत कम टाइम होता है, लेकिन आप समाजी कामों में किस तरह टाइम दे पाती हैं, और आपकी इंस्पायरेशन क्या, आपके अंदर जज्बा किस तरह ये पैदा हुआ? जैसा कि ताहिरा रुबाब साहिबा ने कहा, ये शायद बचपन से ही था। मैं ये नहीं कि कोई रोल मॉडल था जिसको देखा कि जिससे इंस्पायर होके किया, लेकिन बचपन से ये एक जज्बा था कि बस खिदमत करनी है। और स्पेशली जब ये ख्याल आया कि डॉक्टर बनना है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछता कि डॉक्टर क्यों बनना है, तो मैं यही कहती कि खिदमत के लिए बनना है। उस वक्त ये नहीं सोचा कि ये अच्छी करियर चॉइस है कि नहीं, कि इसमें पैसा है कि नहीं, या इसमें आगे क्या चांसेस होंगे। बस ये सोचा कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आप लोगों की खिदमत कर सकते हैं, हर तरह से उनके काम आ सकते हैं। तो ये एक इंस्पिरेशन थी बचपन से। और यहाँ पे आके भी जब मैंने यहाँ काम शुरू किया, तो मुझे ये लगा कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की बहुत कमी है। लोग जर्मन डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, लेकिन उनकी तसल्ली नहीं होती जब तक वो किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से बात ना कर लें या अपनी ज़बान में अपने डॉक्टर से बात ना कर लें। देखें, डॉक्टर के पास जाके अपनी ज़बान में अपना सारा मसला समझा के आपकी आधी बीमारी दूर हो जाती है। दवा की ज़रूरत तो बहुत देर बाद आती है। तो ये कमी मुझे लगी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, जिसकी वजह से शायद मैंने प्रैक्टिस भी बनाने की एक वजह ये थी कि कोई पाकिस्तानी खातून डॉक्टर की प्रैक्टिस हो जहाँ पे इस तरह के पेशेंट्स आ सकें। उसके अलावा मैं ऑनलाइन सबके साथ राब्ते में रहती हूँ, जिसको भी मदद की ज़रूरत होती है। सोशल मीडिया की वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया है कि वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ मिलकर सेमिनार्स करते हैं, ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी, जहाँ पे हम मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में सबको आगाही देते हैं, अवेयरनेस देते हैं उर्दू ज़बान में। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ नए आए हैं, जिनको अभी ज़बान नहीं आती। ये उन लोगों के लिए जो बहुत अरसे से यहाँ मुकीम है लेकिन फिर भी ज़बान नहीं बोलते, और उन लोगों के लिए है जो थोड़ी बहुत ज़बान बोलते हैं लेकिन पूरी बात नहीं समझ सकते। तो ये एक कमी मुझे लगी, जिसकी वजह से ये काम शुरू किया था। लेकिन अब ऐसी ख़वातीन से मिलके, शाहिदा साहिबा से मिलके, ताहिरा साहिबा से मिलके ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाए, और हमारे लिए तो शायद बहुत आसानियाँ थी सोशल मीडिया की वजह से। इन लोगों ने तो उस वक्त काम किया, कम रिसोर्सेज में काम किया, सोशल मीडिया के बगैर काम किया। तो इतने अरसे से ये लोग यहाँ मुकीम है और ये सब काम कर रहे हैं, तो हमें लगा कि इनको सबके सामने लाना चाहिए। वैसे तो माशाल्लाह दोनों काफ़ी फेमस हैं, मशहूर हैं, लेकिन हम नई जनरेशन को भी इनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, इनसे इंस्पायर करवाना चाहते हैं, और हम इनके जैसा बनना चाहते हैं। इसलिए आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। और हम आप जैसा बनना चाहते हैं, आप जवान लोगों को आपने दुनिया लेके चलनी आगे। शाहिदा परवीन साहबा, मैं आपसे सवाल करूंगा कि आपका काम माशाल्लाह बहुत ही यूनिक काम है। बहुत कम लोग जो हैं वो आपकी तरह जो वो काम कर रहे हैं। तो आपको क्या फील होता है कि मजदूरों की, स्पेशल पर्सन की, उनकी ट्रेनिंग करके, उनको एजुकेट करके, और कितने इस वक्त स्पेशल आपके स्कूलों में स्पेशल पर्सन जो वो उनको आप एजुकेशन दे रही हैं, या स्पेशल सेंटर्स में आपके मजदूर या स्पेशल पर्सन कितने मौजूद हैं इस वक्त? पहले तो मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहूंगी इंसानियत के नाम पे कि हम इंसानों में से असल में कोई भी माजूर नहीं है। अगर हैं तो हम सब माजूर हैं असल, अगर हम उसकी डेफिनेशन में जाएं, क्योंकि हर इंसान में एक न एक माजूरी है, मुकम्मल कोई भी नहीं है। हम सब में से कोई है, आप, मैं, तीसरा शख्स, जो कि किसी ना किसी चीज को नहीं कर सकता, और उसकी मुख्तलिफ एबिलिटीज हैं, मुख्तलिफ सलाहियतें हैं। तो इसी तरह इन लोगों के साथ जिन्हें हम माजूर कहते हैं, और हमारी सोसाइटी में, इंडो पाक में, उन्हें कहा जाता था साईं, पागल, अल्लाह वाले। तो मैं कहूँगी कि मैंने जो तजर्बा किया उनके साथ रह के, मैं तकरीबन 30 साल हो गए मुझे नफरात के साथ रहते हुए और काम करते हुए, कि वो इतने स्पिरिचुअल हैं और इतने खुदा के नजदीक हैं, क्योंकि वो पोल्यूटेड नहीं है उन मादी ख्वाहिशात से जो कि हम सब में जगह लिए हुए। उन्हें कोई
मकान बनाने की, गाड़ी खरीदने की, बैंक अकाउंट बनाने की कोई ख्वाहिश नहीं। वो अपने रास्ते पे हैं और वो बहुत ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नजदीक हैं। यकीन कीजिए कि अगर मैं कहानियां सुनाने लगूं कि इस 30 सालों में मैंने क्या क्या उनसे सीखा, तो मैं तो काफी अरसे से अपने स्टाफ से कहती हूँ, अपने दोस्तों से, कि हम सोचते हैं कि हम उनके उस्ताद हैं, हम उनके लिए तो सिर्फ टेक्निकल आसानियां पैदा कर रही हैं कि मैंने 2 घर बना दिए, मैंने उनका पैम्पर चेंज कर दिया, उनके लिए खाना पका दिया, उनके लिए स्कूल खोल दिया, मगर जो वो मेरी जिंदगी में तब्दीली लेके आ रहे हैं, जो कुछ मैं उनसे सीख रही हूँ उनके साथ काम करते, उसका और उसका कोई मवाज़न नहीं। समझ रहे हो? तो ये अब जो है यहाँ जर्मनी में भी आपने देखा होगा कि अब उन्हें बेहिंडटे नहीं कहा जाता, बल्कि कहा जाता है कि जैसे पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटीज, मुख्तलिफ सलाहियतों के साथ वो सब कुछ कर सकते हैं। अभी हमने रोशनी एसोसिएशन में लाहौर में, जो काफ़ी बड़ा अदारा है माशाल्लाह, 2001 में शुरू किया था, और उसमें जर्मन बेकरी है, लकड़ी का काम वो सीखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, आर्ट वर्क है, टेक्सटाइल का काम है। तो जब लोग वो देखने आते हैं तो वो कहते हैं कि अरे ये कर सकते हैं ये काम। तो मैंने कहा देखिए आपके सामने कर रहे हैं, आप आइए। लम्स यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटीज के लोग आते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज के भी बहुत स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास, तो वो देखते हैं। मैं कहती हूँ देखिए, पकड़िए ये लकड़ी अपने हाथ में, बनाइए ब्रेड, क्या आप बना सकती हैं? वो कहते हैं नहीं हम तो नहीं बना सकते। मैंने कहा देखिए ये बना रहे हैं तो फिर बताइए इसमें से माजूर कौन? तो ये वो चीज है कि मैंने बचपन में, जब मैं सब यानी कि स्कूल टाइम में सबसे पहले फाउंटेन हाउस गई लाहौर में, तो मैंने देखा कि हमारी सोसाइटी में उन्हें क्या कैसा है। यूरोप में भी पहले ऐसा था, उन्हें जेलों में रखा जाता था, उन्हें जंजीरों में बांध के रखा जाता था। अभी तक ये बहुत सी जगहों पे हो रहा है दुनिया में। मगर मेरा पाकिस्तान में ये अदारा शुरू करने का मकसद ये नहीं था कि मैं उन्हें सिर्फ रोटी सालन खिलाऊं 3 टाइम का और बिस्तरे दूं अच्छे वाले, बल्कि मैं उससे सोसाइटी में एक उनकी सोच में तब्दीली लाना चाहती हूँ कि हम इंसान को पहचानना शुरू करें, उसे उसकी इज्जत दें। जब मैं अपने एक स्पेशल पर्सन को, जिसे हम कहते हैं, हमारे साथ काफी जर्मन लोगों ने भी काम किया, उनके साथ जब मैं हॉस्पिटल गई उन्हें लेके, तो उन्होंने उस जवान बच्चे को देखा जो कि सिर्फ छोटे से जिस्म का रह गया था, उसके हाथ पांव सुखड़े हुए थे। उन्होंने कहा अरे आप 3 लोग इतने बीमार शख्स को लेके आए मेरे पास, इस पे इतनी मेहनत करने का आपको क्या फायदा? ये तो दुनिया में कोई मुकाम नहीं बना सकता। तो जब हम इतना मटेरियल तौर पे सोचेंगे, तो आप ये देखिए कि फिर हम खुदा की मर्जी के खिलाफ लड़ते हैं। असल में हम उसे नहीं पहचान पाते कि उसके खालिक ने किसी मकसद के तहत उसे जमीन पे भेजा है, तो हम उसकी मुखालफत करते हैं कि खुदा तूने उसे ऐसा क्यों भेजा और मेरी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर। तो मैं तमाम वालिदैन से कहूंगी कि जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो कि जिन्हें हम माजूर कहते हैं, तो वो ये समझें कि असल में ये अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत के लिए भेजे, सोसाइटी की तरबियत के लिए भेजे लोगों को, और हमने उन्हें उनका हक देना है, उन्हें इज्जत देनी है, उन्हें इंसानियत के पैमाने पे ऊंचा लेके आना है। उन्हें, आप देखिए मैं अभी भी 70 स्पेशल पर्सन्स के साथ रहती हूँ अपने शहर में। जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी से भी और इस दुख से कि मेरे वतन में अभी तक हम उन्हें बेचारे समझते हैं, उन्हें तरस खा के कहते हैं अच्छा तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, मैं अल्लाह के नाम का खाना भिजवाते हैं, हम उन्हें अल्लाह के नाम के कपड़े भिजवाते हैं। क्यों ऐसे है? हम यहाँ जर्मनी में आप देखें, वो काम करने जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो नॉलेज सीखते हैं, वो हाउस बिल्डिंग करते हैं, वो तनख्वाह लेके, मेरी हमसाई वो 3 माजूर खवातीन है, वो अपने घर का किराया देती, वो खुद खरीदारी करके खाना पकाती हैं, उनका एक वो आता है केयर करने वाला दिन में। तो ये वो चीज है जो मैं चाहती हूँ कि हमारे वतन में और यहाँ रहने वाले भी पाकिस्तानी इंडियन लोग जो भी मशरकी सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं, वो ये देखें कि वो इंसानियत की ऊंचाई को और खुदा की हिकमत को समझने की कोशिश करें कि ये जो इंसान मेरी जिंदगी में आया है शागिर्द के तौर पे या मेरे बच्चे के तौर पे, मुझे अब क्या करना है, मुझे इसे इज्जत कैसे देनी है। आप तो डॉक्टर हैं, आप देखती होंगी कि कितनी हम सारी चीजें हम
फिजिकली एंड मटेरियल तौर पे देखते हैं, मादियत के तौर पे, ये जिस्म है, ये एक मादा है, हड्डियों और गोश्त का बना और जहन। हम उसे रूहानी तौर पे नहीं देखते कि जिस्म है क्या, और उसके अंदर जो रूह है, वो रूह तो कभी माजूर नहीं होती। हमारा जिस्म माजूर होता है, हमारी रूह माजूर नहीं होती। वो सब कुछ सीख सकती है और कर सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये मेरे दिल का जख्म है, बहुत बड़ा ख्वाहिश है कि मैं इस पे बहुत बोल सकती हूँ, कि मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जगह जगह हर जगह मस्जिदें बनाने के साथ साथ आप वर्कशॉप्स बनाएं, उनकी ट्रेनिंग सेंटर बनाएं, जो लोग हैं वो काम सीखें, खवातीन भी काम सीखें। मैंने जो इंक्लूसिव स्कूल शुरू किए हैं लाहौर में, कि सारे, ये नहीं कि ये माजूरों का स्कूल है, ये अमीर बच्चों का स्कूल है, ये गरीब बच्चों का स्कूल है, इसे नहीं, ये जो इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, हमें सब कुछ इंक्लूसिव मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी है ही इंक्लूसिव, दुनिया इंक्लूसिव है ना। तो फिर हमें अमीरों को और गरीबों को, बीमारों को क्यों अलग कर देते? आपने बहुत अच्छी बात की। ये दुनिया सबकी है, ये दुनिया नॉन डिसेबल्ड लोगों की भी है और डिफरेंटली एबल्ड लोगों की भी है। बल्कि डिसेबल गलत लफ्ज है, इट्स कॉल्ड डिफरेंटली एबल्ड। हर कोई डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली चैलेंज्ड है। तो हम भी मुकम्मल नहीं है और वो भी मुकम्मल नहीं है, और ये दुनिया हम सब नामुकम्मल लोगों को बिलोंग करती है। उनका भी उतना ही हक है जितना कि हमारा हक है। हमारा फर्ज ज्यादा बन जाता है कि हम फिर, उनका हम पे हक है और हमारा उनकी तरफ फर्ज है कि हम उनको इस दुनिया में इंटीग्रेट होने में मदद दें। जैसा कि यहाँ पे होता है कि डिफरेंटली एबल लोगों के लिए स्कूल बनाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको माशरे का एक फाल शख्स, एक माशरे का फाल हिस्सा बनाया जाता है, ताकि वो अपने आप को किसी से कम ना समझें और कोई उनको कम ना समझे। मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, लेकिन वो कोई ना कोई काम जरूर कर रहे हैं, वो अपने पैसे, अपनी तनख्वाहें खुद कमा रहे हैं, और जिस हद तक वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। बल्कि उनमें ज्यादा कुछ करने का जज्बा है एज कंपेयर टू अदर पीपल, नॉर्मल पीपल, जो कि हटे कटे हैं, सब कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं। और आई थिंक वो एक मेंटल डिसेबिलिटी है उन लोगों के लिए कि वो फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड या चैलेंज होने के बावजूद कुछ करना नहीं चाहते। तो ये तो मैं अपनी प्रैक्टिस में रोजाना की बुनियाद पे देखती हूँ और मैं वंडर करती हूँ कि दुनिया किस किस्म की है। लेकिन जहाँ दुनिया में ऐसे लोग हैं, वहाँ दुनिया में आप जैसी खूबसूरत खवातीन और रूहें भी मौजूद हैं जो सेल्फलेस होकर दूसरों के लिए काम करती हैं और जो हमारे लिए मशअल राह हैं। एजाज साहब, मैं दरख्वास्त करना चाहती हूँ, बल्कि आप भी कीजिए ताहिरा साहिबा से, कि चूंकि वो शाहिरा भी हैं तो हम उनका कोई कलाम भी सुन सकें, आज हम उससे महरूम ना रह जाएं। मैं वही उनसे करने लगा था, वही एक गुजारिश करने लगा था कि पहले आगे मैंने एक एक क्वेश्चन करना है अभी शाहिदा साहबा से भी अपना, और डॉक्टर तस्नीम साहबा से भी। आप अपनी एक गजल तरन्नुम में प्लीज जरा सुना दें। अच्छा, अब एकदम से वो बातें कही की थी, अब ज़हन उधर जाएगा। मैं जरूर इंशाल्लाह वो मैंने कल वो जो पंजाबी का था वो ही सुना दूं। चलिए ये सुनाती हूँ मैं आपको। जी जी जरूर। तो आपकी खूबसूरत समातों की नजर। जी इरशाद फरमाइए। चली मैं तलाश मकान में, चली मैं तलाश मकान में, लिए ज़ाद राह में इश्क को, लिए ज़ाद राह में इश्क को। चली मैं तलाश मकान में, लिए ज़ाद राह में इश्क को, कि जुनून शौक विसाल में तेरे लाओ मकाओ में उतर गई मैं, तेरे लाओ मकाओ में उतर गई मैं, तेरे लाओ मकाओ में उतर गई। वो जुनून था के विशाल था, वो जुनून था के विशाल था, मुझे होश ही न कोई रहा। इसी कर्ब मस्ती में बेखबर,
कड़े इम्तिहान में उतर गई मैं, कड़े इम्तिहान में उतर गई मैं, कड़े इम्तिहान में उतर गई। वो जो एक खलश थी दबी दबी, वो जो एक खलश थी दबी दबी, वही आ बिछी मेरी राह में। वो जो एक खलश थी दबी दबी, वही आ बिछी मेरी राह में। वो जो एक तड़प सी अज़ल से थी, मेरे क़ल्ब जा में उतर गई, वो मेरे क़ल्ब जा में उतर गई। कड़ी धूप में थी खड़ी हुई, इश्क की धूप बहुत कड़ी होती है। कड़ी धूप में थी खड़ी हुई, पड़ी शजर मूसा पे ये नजर। कड़ी धूप में थी खड़ी हुई, पड़ी शजर मूसा पे ये नजर। मैं तलब में थी किसी छाँव की, कि मैं शम से जाम में उतर गई रे, मैं तो शम से जाम में उतर गई रे, मैं तो शम से जाम में उतर गई। और तू कली रुबाब बहार की, तू कली रुबाब बहार की, ये जहां तो संग फरोश है। तू कली रुबाब बहार की, ये जहां तो संग फरोश है। इसे क्या खबर, इसे क्या खबर, इसे क्या खबर कि तू किस घड़ी दिल बाग़बां में उतर गई रे, दिल बाग़बां में उतर गई रे, दिल बाग़बां में उतर गई। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। तो मैं अपना क्वेश्चन करूंगा शाहिदा परवीन साहबा से। शाहिदा परवीन साहबा, आप जानती हैं कि यहाँ से एक यंग खातून 28 साल की उम्र में गई थी, डॉक्टर रुतफाओ, जी इंडिया हाँ के जी लिए गई थी, जी कराची में रुक गई, बिल्कुल लेकिन उस खातून का हिम्मत और हौसला कि उसने तकरीबन पाकिस्तान से कोढ़ के मर्ज को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम किया। मेरे दो क्वेश्चन दो हैं, इकट्ठे ही मैं करने हैं, टाइम क्योंकि बड़ा शॉर्ट है, आपने ज्वाइन करते हुए आपको अच्छा आपसे लेट हो गया। क्या कोई हमारी कम्युनिटी में भी अब डॉक्टर रुतफाओ पैदा हो सकती है? और दूसरा ये जो नई नस्ल है उनको पैगाम दें कि असल जिंदगी खिदमत खलक है या हमारी असल जिंदगी है क्या? जी इन दोनों सवालात का जवाब एक ही है कि हर शख्स में, हर इंसान में सलाहियत है कि वो फ्राउ रूट बन सके और उस रुतबे को पहुंच सके। उसे सिर्फ अपने आप को पहचानना है। दोम ये कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतें दे के इस दुनिया में भेजा है। जो लोग हमारी नज़र में कुछ भी नहीं कर रहे, वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जो लोग काम कर रहे हैं, मदर टेरेसा जैसे हैं, ईदी साहब जैसे हैं, और भी शुक्र है कि बहुत दुनिया में ने अच्छे लोग हैं जो कि इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जानवरों की, पौधों की खिदमत कर रहे हैं। वो सब अपने अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। हमें अपनी सलाहियतों को पहचानना होगा। मेरी बहुत ख्वाहिश है, और इस मरतबा भी जब मैं पाकिस्तान में रही और वालिदैन के साथ काम किया, बच्चों के साथ, मुझे जिस चीज़ की कमी महसूस होती है वो है खामोशी। बहुत आम सी बात लगती है, मगर खामोशी का मतलब ये है और उसका मकसद ये कि खामोश रह के इंसान अपने आप को सुन सकता है। हम इतने शोर में फंस गए हैं जिंदगी के और ख्वाहिशात के शोर में
और मादियत के शोर में फंस गए हैं कि हम अपनी रूहानी पैगामात को रिसीव नहीं कर पाते कि मेरा जो खालिक है वो मुझे क्या पैगाम भेज रहा है, हम उसे सुनते नहीं। आपने देखा कि हमारे पैगम्बरान किराम, हमारे सूफिया किराम, हमारे बुजुर्गान दीन खामोशी में वक्त गुजारा करते थे, नेचर में वक्त गुजारा करते थे, गारों में वक्त गुजारते थे, जानवरों के साथ खामोश बैठा करते थे, तो उन पे पैगामात उतरते थे। हम इंसान अब इतनी टेक्निकल लाइफ में और शोर में फंस गए हैं कि आज का इंसान उस आवाज को नहीं सुन पाता जो उसके अंदर है, जो उसके दिल में, और जो उसे ऊपर से रूहानी दुनिया भेज रही है। तो मेरी बहुत ख्वाहिश है, दुआ है सब इंसानों के लिए, खासतौर पे जवान बच्चों के लिए जिन्होंने इस दुनिया को लेके चलना है, कि वो कुछ खामोशी इख्तियार करें और अपने आप को सुनना सीखें और अपनी जिंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करें, खुशियां मनाएं, अच्छे लिबास पहनें, लेकिन अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें कि ज्यादा वक्त वो ब्यूटी पार्लर्स पे ना गुजारें, लिबास जैसा मर्जी पहन लें और दुनिया उन्हें पहचाने कि अगर वो कहीं उठ के मेरी तरह खद्दर के कपड़ों में भी कहीं चले जाएं बड़ी सी बड़ी हाई सोसाइटी में और एम्बेसिडर के पास काम करने के लिए, तो वो उसे इज्जत मिले, क्योंकि इज्जत आपको आपके काम से मिलती है, आपके दूसरी बैरूनी चीजों से नहीं मिलती। ना गाड़ी से इज्जत मिलती है, ना आपके मटेरियल अकाउंट से इज्जत मिलती है, वरना ईदी को, मदर टेरेसा को यह इज्जत ना मिलती और प्रोरूट को। तो जवान बच्चों को सोचना होगा, और वालिदैन की भी बहुत जिम्मेदारी है, जो कि सोसाइटी की मैं कहूँगी कि बच्चों पे बहुत दबाव है कि वो सिर्फ स्कूल की तालीम हासिल करें, यूनिवर्सिटी में जाएं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईटी में जाएं, इंफॉर्मेटिक पढ़ें, ये करें और अच्छी सी मुलाजमत हासिल करें और फिर शादी करें। ये जब आप एक बच्चे को उसकी जिंदगी की लाइन बस यहाँ तक दे देंगे, तो वो और क्या करेगा, वो क्या सोचेगा? उसने तो सिर्फ उसी के लिए स्ट्रगल करना है जो सोसाइटी उसके लिए रास्ता बना रही है। अगर हम एक बच्चे को आजादी देंगे कि हाँ तुम किसान भी बन सकते हो, तुम खेतों में भी काम कर सकते हो, तुम बाग में भी काम कर सकते हो, तुम जानवरों के साथ भी काम कर सकते हो, तुम इंसानों के साथ काम कर सकते हो, और जो जिस्मानी या ज़हनी तौर पर बीमार लोग हैं उनके साथ जाके काम करो, हॉस्पिटल में जाके प्रैक्टिकल करो, तो आप देखिए वो करेंगे, क्योंकि वालिदैन और सोसाइटी आपको इज्जत देगी, सपोर्ट करेगी उस बच्चे को जो कि वो ये काम कर रहा है। जब मेरा बच्चा यहाँ खेतों में काम करता है जाकर, और मैं बताती हूँ पाकिस्तान में कि मेरे बच्चे तो खेतों में काम करते हैं, कहेंगे ओहो तुम्हारे बच्चे जर्मनी में रह के खेतों में क्यों काम कर रहे हैं, अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? और मेरा बच्चा कहता है कि जमीन ही तो हमारी माँ है, खुदा इसमें रिस्क पैदा करता है, तो मैं इस जमीन की कदर क्यों ना करूं और इसका काम मैं सीख। तो समझ रहे हैं आप? तो ये है हमारी सोसाइटी को, वालिदैन को, खास तौर पे उस्ताद को ये देखना चाहिए कि एक बच्चा क्या सलाहियत लेके आया है, वो नेचर के साथ मिलके कैसे काम कर सकता है, वो देसी खेती बाड़ी करे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, इंसानों के साथ काम करे, जानवरों के लिए काम करे, तो फिर देखिए कि उनकी शख्सियत में कैसी डेवलपमेंट आएगी, कैसे यहाँ होगा। आपने देखा कि जर्मनी में इतनी सहूलतें हैं इन चीज़ों की कि आप बीए करने के बाद या 9वीं जमात करने के बाद भी 3 साल की हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, हर चीज़ में ट्रेनिंग लेने जा सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ। और उसके बावजूद जो है मुझे अफसोस है कि यहाँ जो भी गैर मुल्की आता है वो ये कहता है कि बस मैंने तो आईटी पढ़ना है या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जरूर ये करें, लेकिन इसके अलावा जो दुनिया है वो आईटी से नहीं चलेगी, वो कंप्यूटर से नहीं चलेगी, वो एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे हकीम, एक अच्छे डॉक्टर और एक अच्छे किसान के जरिए ये दुनिया चलेगी। क्यों डॉक्टर साहिबा? आप देखें कि जो शोबे इंसानियत की खिदमत के लिए काम करते हैं, हमें बच्चों को वो सिखाने चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि आप इंसानियत के शोबे में जाएं, आप सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों और पौधों के लिए भी काम करें, कुल फितरी तकाजों को पूरा करें। जो दीन फितरत है उसके मुताबिक उगी हुई चीजें और उसमें परवरिश पाने वाले जानवरों को इस्तेमाल करें, उससे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, ना कि जो सारी हमने केमिकल लाइफ अपनी जिंदगी में शामिल कर ली है। आप यकीन कीजिएगा, मेरे कहने की इजाजत क्या हो, मैं उस्ताद हूँ, बोलती बहुत हूँ, कि मेरे जितने भी जर्मन लोग हैं, मुझे 40 साल हो गए तकरीबन यूरोप में,
میرے ہمسایوں میں ٹی وی نہیں, میرے دوستوں کے گھر ٹی وی نہیں, کسی کے گھر کوکا کولا نہیں آتا, کوئی میکڈونلڈ نہیں جاتا. اور جب میں یہ باتیں جا کے پاکستان میں بتاتی ہوں تو وہ حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم جرمنی میں ہو یا کس جگہ دنیا میں کس حصے میں ہو. میں کہتی ہوں جو جرمنی میں, آپ دیکھیں یہاں کتنے لوگ ہیں جتنے کی شعوری طور پہ زندگی گزار. یقیناً دوسرا حصہ بھی ہے جو کہ کرتا ہے, لیکن جب میں پاکستان جاتی ہوں تو سب لوگ فخر محسوس کرتے ہیں کہ وہ میکڈونلڈ جا رہے ہیں, وہ KFC جا رہے ہیں, وہ کیمیکل کی چیزیں کھا رہے ہیں اور وہ فاسٹ فوڈ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈارک ٹنل ہے جس سے ہم کالی سرنگ سے گزر رہے ہیں اپنی ٹریننگ کے لیے, اس پہ ہمیں ذرا تھوڑا سا نا روشنی پیدا کرنی ہوگی, اور دعا ہے میری بہت. شاہدہ پروین صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کیا. فرانکفورٹ میں آپ کے ایک لیکچر کا بھی اہتمام کرتے ہیں, اوپن ہونا چاہیے کمیونٹی کے ساتھ, آپ کا سب کو میسیج پہنچے. وقت بڑا شارٹ ہے. شکریہ جی. پیارا رباب صاحبہ, مجھے پتا ہے کہ آپ مذہبی سکالر بھی ہیں, 15-20 سال سے میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, اور آپ ایک سیلف میڈ انسان بھی ہیں, مذہبی سکالر بھی ہیں, بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں, اور اس کے بعد وجود سماجی خدمت کا بھی آپ نے ایک سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. 2-3 منٹ میں آپ نئی نسل کو پیغام دیں, نئی نسل کو, کہ ان کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. ہاں جی, سب سے پہلے ہماری نئی نسل کو یہ اویئرنیس چاہیے کہ ہم کون ہیں, یہاں کہاں سے آئے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, کہاں جانا ہے, اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے. جب یہ تھاٹس نوجوانوں کو ملے گی, اس کے بعد وہ اپنی زندگی کے اس پریکٹیکل کو, کہ ہمارا ایک شارٹ ٹائم ہے, ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر فلانا ہر دن گروپوں میں ہر جگہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک شورٹی نہیں ہے کہ ہاؤ لانگ آئی ایم ہیئر, کتنی دیر میں ٹھہر رہا ہوں. جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. اس ٹائم ڈیوریشن کو ہمیں اپنی نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ پلیز اس دنیا کے اس چکر کے علاوہ اپنی ذات کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ میں کون ہوں, کیوں آیا ہوں, کیا کر رہا ہوں. جب آپ اس طرف توجہ دیں گے تو آپ کو ساری پریشانیاں, ہرڈلز ختم ہو جائیں گی. اور یہ جو ہمارا ماحول, خصوصاً ہمارا پاکستانی ماحول بہت ہے کہ جہاں بس کلچر, یہ ایسے کر, ایسے بن جا, ایسے ہو جا, چھوڑ دو انہیں آزاد. اپنے راستے کو دیکھو, پہچانو, ان کی تربیت اتنی کرو کہ تو ایک خدا کی طرف سے ایک صفت پروردگار ہے, تو نے اپنا راستہ خود معین کیا کرنا ہے, اور اس تعین کیے ہوئے راستے کے اوپر اپنی منزل کو خود پانا ہے. جیسے تیری ذات تجھے کہتی ہے ویسے کر. یہ اپنے اندر کو سنے, اپنے ماحول کو مت سنے, بلکہ کائنات کو آبزرو کریں اور مالک کائنات کی تلاش رکھیں, تاکہ آپ کی ذات مطمئن ہو جائے. پہلے خواہر کی بات شاہدہ صاحبہ کی پہ میں کہنا چاہ رہی تھی, لیکن ہمیں موقع وہ پھر اور آ گیا بیچ میں, کیونکہ یہ جو فرما رہی تھی کہ صحیح کہہ رہی ہے کہ ڈپریشن ہر کوئی شکار ہے. ڈپریشن ہوتا ہی تب ہے جب آپ کو خبر نہیں کہ میں کون ہوں, کیا کر رہا ہوں, کہاں کیا ہے میرا آگے. میں آپ کو پکڑ کے گاڑی میں بٹھا کے لے جاؤں تو آپ چیخیں چلائیں گے, کدھر جا رہے, کدھر جا رہے, کدھر جائیں گے. میں چپ کر کے لے دی جاؤں, وہ دروازے بھی توڑے گا. لیکن جب میں یہ کہوں کہ ہم یہاں ایک خوبصورت پارک میں آپ کو دکھاؤں, تو وہ ایک عجیب طرح کی اس مسرت میں, اس شوق میں, اشتیاق میں جائے گا, اور پرسکون بلکہ انجوائے کرے گا راستے کو. تو یہی ہماری زندگی کا پیتھ ہے. نوجوانوں, اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھو, اپنا ٹائم ڈیوریشن جو ہے اس میں اتنا کما لو, اتنا بینک بیلنس اکٹھا کر لو کہ کل کو پرابلم نہ ہو. کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ کی ڈیوائس کے اندر ایک الیکٹرکسٹی نور چل رہا ہے, کس وقت وہ آپ کے اس ڈیوائس میں سے نکل جائے اور وہ بیکار ہو جائے اور وہ پھینک جائے. بہت شکریہ. آخر میں ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے, آپ ہوسٹ بھی ہیں پروگرام کی, لیکن میں نہیں کنٹرول سنبھالیا پروگرام کا. میں آخر میں آپ سے ایک کویشچن کروں گا, کیونکہ آپ بھی سوشل ورکر ہیں اور نئی نسل کی نمائندہ ہیں, اور جو گروپس ہیں جرمنی میں خواتین کے سوشل میڈیا گروپس ہیں, ان میں بڑی ایکٹیو ہیں آپ کیا نئی نسل کو پیغام دیں گی کہ ان کو کس ڈائریکشن پہ جانا چاہیے؟ دیکھیے, نئی نسل صرف یہ نہ دیکھے کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, اپنے لیے تو ضرور کرنا ہی کرنا ہے. آپ آئے ہی جرمنی یہاں اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی زندگی بنانی ہے, لیکن جو لوگ
ایک مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی کام آ سکیں، وہ بھی ضرور کرنا چاہیے. اور اس بات سے اوپر اٹھ کے کہ یہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا مجھے کوئی اس سے نام پہچان ملے گا یا میرا کوئی فائنینشیل فائدہ ہوگا، یہ ساری چیزیں سائڈ پہ رکھ کے اگلے کو مدد کریں، گائیڈ کریں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے ہی یہاں پہ موجود ہیں، اور ہم سب ہی ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور صرف یہ نہیں بلکہ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، جینڈر سے اور ریلیجن سے ہٹ کے آپ نے سب انسانیت کی خدمت کرنی ہے. آپ سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد آپ مسلمان ہیں، اور اس کے بعد آپ پاکستانی ہیں، اور اس کے بعد آپ جرمن ہیں یا کچھ اور ہیں. تو سب سے پہلے انسانیت آتی ہے. تو آپ سب کو انسان سمجھیں اور انسان کے طور پہ ہی سب کی مدد کریں. آپ یہاں پہ ایک چیز جو میں ہمیشہ کہتی ہوں اور میں ابھی بھی کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ اپنی پہچان کو نہ بھولیں. آپ کی پہچان پاکستان ہے، آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ یہاں پاکستانی کے طور پہ پہچانے جائیں گے. چاہے آپ اپنا نام ٹام یا ہیری رکھ لیں، لیکن آپ کی شکل، آپ کی نسل، آپ کا اصل پاکستان ہے، اس کو اون کیجئے. اس میں آپ کی بھی عزت ہے، آپ کے ملک کی بھی عزت ہے. اور اس سے آپ کو جرمنز اگر آپ کو ہیری بلائیں گے تو آپ کو زیادہ رسپیکٹ نہیں کریں گے ایز کمپیئر ٹو اگر وہ آپ کو آپ کے اپنے نام حارث یا جو بھی اس سے بلائیں گے. تو اس کو اون کیجئے اور اس کے ساتھ ہی دنیا میں آگے بڑھیے. یہ بہت ضروری ہے جو کہ میں سب نئی نسل کو کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی پہچان نہ بھولیے، اپنے روٹس نہ بھولیے، کیونکہ آپ ان کو مٹا نہیں سکتے ہیں. اور آگے جو بچوں کی تربیت کی ایک بات ہوئی جس میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو زندگی کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے. ہم صرف ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی ویل بینگ پہ، ان کی صحت پہ، ان چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ زندگی میں دنیا میں کچھ بن جائے. ہمیں ان کو دنیا کو دوسرا رخ دکھانا چاہیے کہ دوسرے لوگ کیسے رہتے ہیں، غربت میں کوئی کیسے رہتا ہے، بیماری میں کوئی کیسے رہتا ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دنیا صرف وہ نہیں ہے، محدود نہیں ہے ان کی دنیا تک، بلکہ دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے. اور یہ کہ وہ اس دنیا کے یا ان لوگوں کے کیسے کام آ سکتے ہیں. تو بچوں کو ہر چیز سے روشناس کرانا چاہیے، کیونکہ یہ بھی دنیا کا حصہ ہے. اور اسی طرح پھر ان میں جذبہ پیدا ہوتا ہے کسی کے بھی کام آنے کا. شاہدہ صاحبہ ٹائم اوور ہو گیا ہے. شاہدہ پروین صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی شاہدہ پروین صاحب آ رہی ہے آپ کی. اچھا پھر میں آخر پہ آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ جو آپ نے سینٹر بنایا ہوا ہے یہ ایک یونیک ایگزامپل ہے پورے جرمنی میں. میرے خیال میں اس طرح کا کوئی بھی پاکستانی کمیونٹی کا سینٹر نہیں جو اس طرح انٹیگریشن کے لیے اور پاکستانی کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہے، جہاں مختلف کمیونٹیز اکٹھی ہوتی ہیں، اکٹھے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. یہ واحد ایک ایگزامپل ہے جرمنی میں جو میرا نالج ہے. میں تو جرمنی میں نیا آیا ہوں، ارباب صاحبہ زیادہ بہتر پورے جرمنی کو جانتے ہیں، میں چونکہ اٹلی سے وہ ہوا ہوں. یہ واحد ایگزامپل ہے. 2-3 منٹ میں بتائیں کہ آپ کا سینٹر کیا کر رہا ہے یہاں. جی ہمارا ہر سنڈے کو میں آپ کو چھوٹا سا دکھا بھی دوں. یہ دیکھ تھوڑا سا بھی رہا، یہ سینٹر ہے کافی بڑا. یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ، ایک کارنر ہم نے بنایا ہوا ہے چھتریاں لگا کے، پیچھے پینٹنگز ہیں اور پاکستان کی ٹیکسٹائلز ہیں. یہ باہر سڑک گزر اور ادھر ہے سب پینٹنگز. ہم نے پیانو رکھا ہوا ہے، طبلہ ہے اور میوزک انسٹرومنٹس ہیں. تو اس محلے کے لیے بالکل کارنر پہ ہے یہ سڑک پہ. اور جب میں یہاں آئی اس محلے میں نے سوچا کہ یہاں ایک پوائنٹ ہونا چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے جہاں سب ہم سائے آپس میں مل سکیں اور دوسرے لوگ آ کے یہاں مل سکیں. تو میں نے فوراً سنڈے کیفیٹیریا شروع کر دیا، زون ٹاکس کافے. ہر اتوار کی آفٹرنون کو یہاں لوگ آتے ہیں اور ایک چھوٹا سا لنگر کھانا میں بناتی ہوں. ہم اس پہ کافی، کیک، چائے سب کچھ رکھ دیتے ہیں اور ہر کوئی آتا ہے اور انجوائے کرتا ہے. جس دن زیادہ مہمان ہو یا ہم کنسرٹس کریں تو ہم پھر اس دن پاکستانی کھانا، افغانی کھانا، یوکرائن کا کھانا، جو بھی ملک کے لوگ ہمیں مل جائیں یہاں والنٹیئرز، ہم اس کا کھانا پکاتے ہیں اور سب کو پھر کھلا کے خوش کرتے ہیں. اس کے علاوہ کنسرٹس ہوتے ہیں. تو میرا یہ، چاہے وہ پاکستان میں کوئی سینٹر ہے روشنی ایسوسی ایشن یا یہ جرمنی کے چھوٹے سے شہر وٹن میں یہ ایک سینٹر ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے. ایک ہی مقصد کے تحت یہ شروع کیے گئے کہ سوچ کو بدلنا، لوگوں سے ملنا،
लोगों के कल्चर को पहचानना, लोग दूसरों के ज़रिए अपने आप को पहचान सकें। तो ये इस चीज़ का जो मकसद है उसे हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी जर्मन लोग मदद करते हैं यहाँ आके, अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और आजकल यूक्रेन के बच्चों के साथ हम काफ़ी काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यहाँ इस सेंटर में होता है, और जो लोग यहाँ नहीं भी आते हैं और बाहर से गुजरते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं कि यहाँ हमारे मोहल्ले में एक चीज़ है जिसका ऑरा इतना खूबसूरत है, हमने इसे बहुत रंगीन बनाया हुआ है। यहाँ के शहर का बर्गरमाइस्टर यहाँ आता है हमेशा बहुत शौक से, जिस मीटिंग में भी उन्हें बुलाएं वो यहाँ आते हैं। और यहाँ की जो छोटी सी सियासी पार्टी है शहर की, उसका भी मैं हिस्सा हूँ, वो लोग भी यहाँ अपनी मीटिंग्स करते हैं। यहाँ जर्मनी की मेडिकल यूनिवर्सिटी है, शायद डॉक्टर साहब आप जानती होंगी, विटन हेड एक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है मेडिकल की, पूरे जर्मनी में ये वाहिद एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है, ये बिल्कुल मेरे नेबरहुड में है। वहाँ के स्टूडेंट्स यहाँ आके अपने सेमिनार्स करते हैं, अपने लेक्चर्स होते हैं, उनके मीटिंग्स होती हैं, अपनी क्रिसमस मनाते हैं। तो ये मकसद है इस चीज़ का कि सब इंसान आपस में मिलें, एक मेज़ पे बैठ के एक दूसरे का गम सुने, एक दूसरे से शेयर करें और दूसरे ममालिक की कल्चर को जाने पहचाने। हमने यहाँ भी फिल्म का भी हम शुरू कर रहे हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान के बारे में, अपना वहाँ की नेचर के बारे में और लाइफ के बारे में फिल्में दिखाएंगे, और दूसरा सब कुछ भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे दूसरे कंट्रीज का। यहाँ जो वो देखते हैं कि एक पाकिस्तानी औरत है, तो जब मैं यहाँ शलवार कमीज में खड़ी होती हूँ और जो भी औरतें आती हैं सब दुपट्टे शौक से पहनती हैं, तो इसी से एक रास्ता बन जाता है पाकिस्तान और जर्मनी का। इसके लिए हमने एक फाइन बनाया है एनजीओ, उसका नाम है इंटरकल्चरल हनी फ्लो, और उसका एक पिलर है निसाबे जिंदगी। तो डॉक्टर साहब आपका भी जो काम है और रुबाब साहिबा, वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं कि निसाबे जिंदगी के जरिए हम ऑनलाइन पूरे दुनिया में जहाँ भी लोग पंजाबी उर्दू समझते हैं उनके साथ काम किया जाए। उसमें टीचर ट्रेनिंग, हिकमत का काम, मेडिसिन का काम, अदब का काम, आर्ट का काम, वो सब कुछ है। तो इंशाल्लाह हम अगली मर्तबा उस चीज़ पे भी बात कर सकते हैं कि हम मिलजुल कर मुख्तलिफ शहरों में रहते हुए पाकिस्तान के लिए जर्मनी में क्या काम कर सकते हैं। ये बहुत खूब, जी बिल्कुल। और हमें यहाँ पे हमारी कोमल मलिक साहिबा को वालेकुम अस्सलाम, इतनी खूबसूरत मोहब्बत से वो सलाम पेश कर रही हैं। खुश रहें, बहुत ही नफीस खातून है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया जी, आप दोनों खवातीन ने हमें टाइम दिया। आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, ख़ुसूसन पाकिस्तानी खवातीन के लिए आप जर्मनी में रोल मॉडल है। तो आपसे पाकिस्तानी खवातीन, इस वक्त पाकिस्तानी खवातीन माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए वो बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आप आपकी सबको दावत देती हूँ कि आप सब यहाँ आए और यहाँ एक मुशायरा कीजिए रुबाब साहिबा, और डॉक्टर साहब आप भी यहाँ आए। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुलाएंगे, जर्मन कम्युनिटी को भी बुलाएंगे, और हम यहाँ इजाज साहब के साथ मिलकर हम एक प्रोग्राम करते हैं। यहाँ हम शायरी का भी शाम रख सकते हैं, कंसर्ट भी करवा सकते हैं, और कुछ भी फ्रैंकफर्ट से इतना दूर नहीं है, हम लोग से नहीं, 2-3 घंटे का सफर कीजिए और आ जाइए। जी जरूर। 5 घंटे का, 5-5.5 का, 550 किलोमीटर है। कोई बात नहीं, अगर हम पाकिस्तान से यहाँ आ सकते आपने आना है, डॉक्यूमेंट के करीब आपने आना है। 3 घंटे का सफर, 3 घंटे का सफर है, आपने एनआर में आना है। तो बाकी आप खवातीन ने हमें टाइम दिया, दोनों रोल मॉडल हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तस्नीम साहबा आपका भी मैं बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि आपने प्रोग्राम को होस्ट किया। तो अगर इस तरह आप जैसे पढ़े लोग और आप जैसी खवातीन अपना रोल अदा करेंगी तो इंशाल्लाह ताला हम मीडिया तो अवेयरनेस के लिए किरदार अदा कर सकता है। तो हम पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक अवेयरनेस पैदा करेंगे, जो रोल मॉडल है उनको सामने लाएंगे, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे और नए आने वाले उनसे रोशनी हासिल करेंगे। तो डॉक्टर साहब आखिर में आप कुछ कहना चाहे और प्रोग्राम को क्लोज करें आप खुद ही। जी सर, बहुत अच्छा, आपसे भी जी।
بہت شکریہ مجھے یہ اپرچونٹی دینے کا کہ میں آپ کے ساتھ آج یہ پروگرام ہوسٹ کر سکوں اور خصوصاً ان دونوں لیجنڈ خواتین سے ملوانے کا، ان سے بات کرنے کا موقع دینے کا اور ان سے انسپائر ہونے کا موقع دینے کا. ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے اور مزید کام بھی کریں گے اور آپ سے اسی طرح انسپائر ہوتے رہیں گے. آپ دونوں کا وقت دینے کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اور آپ سب ویورز کا بہت شکریہ جنہوں نے آج ہمارا پروگرام دیکھا اور کامنٹس کیے. اگر آپ کے مزید کوئی کامنٹس ہیں تو پلیز نیچے لکھیے گا اور ہم آپ کو انشاءاللہ جواب دیں گے. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. خدا سلامت. جی بہت شکریہ آپ لوگوں سے ملاقات کا. اللہ بہت حافظ. اچھا لگا، بہت خوشی بہت ہوئی. اچھا لگا. شکریہ. خدا حافظ.